Bismillahirrahmanirrahim. My name is Eman Faisal and I am from class 7. My age is 12 years old. अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया कि मैं एक नावल लिख सकूं. इसका नाम है द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ रिकैल. I was in class 3 when I thought of writing a novel, but I thought that maybe I'm not ready for it right now. मेरे पास इतनी information नहीं है कि मैं उससे अभी novel यानी कि कोई story या कोई long novel लिख सकूं. So I thought that I should wait for at least 3 to 4 years, and now I'm class 7, so I just thought now I'm ready, so I should write a novel now. It's the time. It's about a girl and she's living in a world which is full of mermaids and fairies, but she don't know. Like, it's a mysterious world for her. And now she's going to do a quest, and that is that she's going to save her grandmother who's been kidnapped by a fairy. So it's a long journey for her. Of course, I'm a girl and I would love to write about girls, and this is a special fairy tale for girls and they would love to read it. My mother was the first person to whom I told that I'm going to write a novel. First, I asked her that should I write or not, and she said yes, you should if you are ready, and I said yes, I am. Then the second person to whom I told was my brother, and he just gave me a book full of vocabulary. He said that it will help you, just use it, and of course he also supported me. And my parents, of course, including my father, he also supported me very much. And then I told my teachers, my subject teachers, including my English teacher, she said yes, you can do this, do write it, and then after writing it, do give it to me so that I would read. I would love it. The Mysterious World of Raquel is the name of my novel, and I've read a lot of novels, including stories. For example, J.K. Rowling's, including The Casual Vacancy and the series she have written of Harry Potter. And Roald Dahl, he's a great writer for me. He writes amazing novels and then stories. The Little Mermaid, The Animal Farm is written by George Orwell. I just love these writers. They write great. मुझे किताब में यानी कि it's my hobby. मैं जब उन्हें पढ़ती हूँ मैं उनकी डेप्थ में पहुँच जाती हूँ when I read them, because I'm inspired by them. जिस तरह वो लिखते हैं, जो वो words use करते हैं, उनकी story, उनके ideas. मुझे बहुत उनके लिए बुरा लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब वो पढ़ाई नहीं करेंगे दे आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर. ये यानी कि अगर वो पढ़ाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बन सकेंगे. लाइक इट्स वेरी बैड फॉर देम. दे मस्ट डू स्टडी. उनको पढ़ाई का शौक होना चाहिए ताकि वो बड़े होकर कुछ बन सकें, लोगों की हेल्प कर सकें. तो यानी कि मैं तो हमेशा ही दिमाग में आता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह इनको यानी कि पढ़ाई में इनका दिल लगा दें ताकि उनका फ्यूचर तबाह ना हो. दे कैन डू समथिंग इन द फ्यूचर. I would like to become a good Muslim. Second, कि मैं अपनी पढ़ाई में अपनी स्कूल की स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगी so that I can become a doctor. And third, I will be keep writing more novels. और मैं स्टोरीज और novels और भी पढ़ूँगी ताकि मैं knowledge increase हो and I would be having more ideas ताकि मैं फ्यूचर में और स्टोरीज और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ लिख सकूँ. मैं अपनी टीचर्स को, इंग्लिश के टीचर्स को आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. दे गेव मी सो मेनी आइडियाज़ इंक्लूडिंग माई ब्रदर
and of course parents always support their child, but my brother and my English teachers, they helped me a lot. मेरे brother ने जो मुझे book दी vocabulary की, it was great. उसकी उन words की यूज़ करते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं मेरे जो मुझे खुद भी नहीं पता थे, and I just use them in my novel, and they were very helpful to me. And my teachers, they support me a lot. उन्होंने मुझे और भी ज़्यादा सारे ideas दिए, and they even give me some more novels. For example, J.K. Rowling, A Casual Vacancy. उसके थ्रू मैंने उधर से थोड़े से वर्ड्स लिए, थोड़ा सा आइडिया लिया, and then I just wrote my novel, The Mysterious World of Raquel. मैंने एक्चुअली एक रफ पेज लेके फर्स्ट पे उसका एक प्लॉट लिखा. पहले मैंने पॉइंट्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने उसके एक प्लॉट लिखा, फिर उसके बाद मैंने डायलॉग्स में डिस्क्रिप्शन डाली. एक्चुअली मैंने टोटल 4 टाइम्स मैंने अपनी नावल लिखी, क्योंकि उसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता और यानी कि डिस्क्रिप्शन ऐड करती गई. जिस तरह मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते गए मैं ऐड करती गई, और ऑफ कोर्स मैं मेहनत करूँगी तो आगे जाके वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा. तो मैंने यानी कि बहुत उसके लिए हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बीच में ऐड करना, आइडियाज़ और नेम्स, जिस तरह और कैरेक्टर्स भी मैंने ऐड किए बारी बारी, जिस तरह से मेरे पास नाम आते रहे. मैंने सोचा कि ये एक ईवल है, ईवल में इतने यानी कि नेगेटिव साइड पे इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, पॉजिटिव साइड पे इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए. मेरे प्रीवियस स्कूल में उन्होंने मुझे, मेरी टीचर्स ने, हमने सबसे पहले इंग्लिश में सीखा यही था दैट व्हेनेवर गोइंग टू राइट अ स्टोरी और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन थिंग, आपने सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल, ताकि आप भूलो ना बाद में कि मैंने पहले क्या सोचा था. आप फ़ौरन कोई भी रफ पेज लो, स्टिकी नोट, जस्ट कीप राइटिंग, जैसे जैसे आइडियाज़ आए लिखते रहो. फिर एंड पे जब कंप्लीट हो जाए तो आप उनके थ्रू एक पॉइंट लिया, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ऐड की, वो एक पैराग्राफ बन गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया, इस तरह करके. उनको यही कहना चाहूँगी कि रीडिंग इट्स अ वेरी गुड हैबिट. उसको अपने अंदर यानी कि बनाएं, कि हैबिट बनाएं कि मैं रीडिंग करूँ, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी हेल्पफुल. यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है. उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करें, एंड ट्राई टू बी अ गुड मुस्लिम.